हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में दो पार्ट आते हैं, एक आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन और एक आता है वेक्टर इंटीग्रेशन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन से। सो वेक्टर डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ स्केलर डिफरेंशिएशन, आप सभी को पता है स्केलर डिफरेंशिएशन let's say y is equal to fx is a scalar function. Okay, now where y is function of x, so it is a scalar function. In this case dy over dx डिफाइन होता है लिमिट h tends to 0 f x plus h minus fx डिवाइडेड बाई h. ओके, ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ स्केलर फंक्शंस. सो इन केस ऑफ वेक्टर functions the differentiation looks like this. Let's say let r t be a vector, right, but which is a function of time. So r क्या है यहाँ पे? r is the position vector and it is function of time. हमें कैलकुलेट करना है dr t अपॉन dt. कई जगह में हम इस t को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे dr ओवर dt. तो उसका मतलब वही है कि r टाइम का फंक्शन है और हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये दोनों सिंबल एक ही चीज़ डिनोट कर रहे हैं. सो dr ओवर dt हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल टाइम r, since it is a function of t, so this will be t plus delta t minus r t divided by delta t. So this is the definition of the vector differentiation. Okay, so here we have taken the example of position vector with respect to time. Okay, now let's say position vector r t is equal to x t I cap plus y t j cap plus z t k cap, right. इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू x I cap plus y j cap plus z k cap. सो dr ओवर dt जो कि है dr t ओवर dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास dx ओवर dt, विल राइट लाइक दिस I कैप प्लस dy ओवर dt, चाहे तो t लिखो छोड़ दो j कैप क्योंकि y यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, प्लस dz ओवर dt k कैप. ओके, सो दिस इज कॉल्ड dr over dt is called velocity vector. Okay, so dr over dt is velocity vector. This is the position vector. This is velocity vector is equal to, so dx over dt will be vx. vx denote कर रहा है velocity along x axis, velocity of particle along x axis, right, plus vy j cap plus vz k cap, where vx is dx over dt, similarly vy is dy over dt, और इसी तरीके से vz हो जाएगा dz over dt. ओके, अगर हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, सो दिस विल बी d2r ओवर dt स्क्वायर एंड दिस विल बिकम d2x ओवर dt स्क्वायर I कैप प्लस
d2y over dt square j cap plus d2z over dt square k cap. Okay, now d2x over dt square is called acceleration, that is ax. So net acceleration vector is ax I cap, dy over dt को हम बोल देंगे ay plus az k cap. Okay, so ये हो गया x component of acceleration, this is y component of acceleration, and this is z component of acceleration. So this is one of the examples of vector differentiation. Okay, so if we differentiate position vector, we get velocity vector. If we again differentiate velocity vector, we get acceleration vector. Okay, I hope सबकी समझ में आ गया होगा. ये बहुत सिंपल है, आपने कहीं ना कहीं पे ये इस चीज को पहले किया होगा. Okay, now we will do one thing. We will see physical meaning of vector differentiation. Let us consider a position vector r. So rt can be written as xt I cap yt j cap plus zt k cap. ओके, मैं यहाँ पे xt एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, यानी कि x अगर टाइम चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, अदरवाइज हम इसको छोड़ सकते हैं. तो वो अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके फाइन. नाउ लेट अस कंसीडर अ 3-dimensional coordinate system. This is x, this is y, and this is z. Let's say this is the position vector r t at time t is equal to 1. What will be the position vector at t is equal to 2, at t is equal to t2? It is t is equal to t1. t is equal to t3 पे वो कहीं और होगा, तो this is t is equal to t3. तो this is r, because r is continuously changing with time. तो अगर हम टाइम चेंज करेंगे तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा. यानी कि अगर मैं इन सब टिप को आपस में मिला दूं, इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपस में मिला दूं, तो एक कर्व बनेगा. राइट, यानी कि अगर कोई वेक्टर टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो उसकी जो टिप है वो एक कर्व को क्या करेगी, ट्रेस करेगी. ओके, नाउ इस कर्व में अगर हमें कर्व की डायरेक्शन निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो कर्व की डायरेक्शन होगी ये टेंजेंट टू दैट कर्व. ओके, तो इस पॉइंट पे अगर कर्व की डायरेक्शन निकालनी है तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे. राइट, इस पॉइंट पे हमें कर्व की डायरेक्शन निकालनी है तो इस पॉइंट पे हम ऐसे टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, नाउ कमिंग बैक टू प्रॉब्लम, सो वी कैन राइट इफ आर टी changes with the time, then tip of the vector r traces a curve and the direction of the curve of that curve can be given by tangent of the curve at particular time. Direction of the curve. तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है वेलोसिटी डायरेक्शन dr ओवर dt. सो हमें पता है ये dr ओवर dt या वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. तो dr ओवर dt डिवाइडेड बाय dr ओवर dt का मैग्नीट्यूड. ओके, तो अगर
कोई वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसकी टिप एक कर्व ट्रेस करेगी, और उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें कर्व की डायरेक्शन लेनी है तो उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, और वो डायरेक्शन जो होगी वो पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इन दैट केस हम डायरेक्शन ऑफ कर्व निकाल सकते हैं फ्रॉम यूजिंग पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, so this you should remember, many times it will be useful. Also we can write the tangent to the curve can be written as dr over dt. So dr over dt is the tangent to the curve at any given time, at any given time. Okay, now let's take few examples related to this. The first example is find out velocity and acceleration at t is equal to 0, t is equal to pi by 2, t is equal to pi, and t is equal to 3 pi by 2. Okay, so what is given to us? So given to us is r is equal to rt is equal to a cos t I cap plus a sin t j cap. Okay, now to find out the velocity, Vt is given by dr over dt. The curve traced by tip of position vector, right, will show the velocity vector. Okay, so this will be how much? Minus a sin t I cap plus a cos t j cap. Okay, to get the velocity acceleration vector will be dv over dt. So differentiating with respect to time, so we will get minus a cos t I cap plus minus a sin t j cap. Okay, now अब हमें क्या निकालना है? हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट डिफरेंट एंगल्स निकालने हैं, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2, एट t इज इक्वल टू पाई, एट t इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2. सो हम क्या करेंगे? we will write theta, we will write velocity vector, and we will write here acceleration vector. So at 0 degree, when I put t is equal to 0 in the velocity vector, if you look at it very carefully, this will become 0 because sin 0 is equal to 0. Cos 0 will become 1. So this will become a j cap. Okay, because cos 0 will become 1, so this will be a j cap. Okay, now acceleration vector, when I put t is equal to 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये cos वाला 0 बचेगा, तो ये होगा माइनस a I cap. Okay, now second, at pi by 2, at 90 degree, in the velocity part, this part will be 0 and this part will be there, because at 90 degree cos theta is equal to 0, but sin 90 is 1. So this will be minus a I cap. Okay, and in the acceleration part, this part will be 0, but this will survive. So this is minus a j cap, because sin pi by 2 is 1. Okay, simply next pi. So at pi, we will see when you put t is equal to pi, this value will become 0 in the velocity vector, and this value will become cos pi. So cos pi, you all know, is minus 1. So this will be minus a j cap. Okay, now similarly, if you go here in the acceleration part, when you put pi, again this part will be 0, but cos pi is again minus 1. So this will be a I cap plus a I cap, because minus is already there. Okay, next angle is 3 pi by 2. At 3 pi by 2, what will be the velocity?
again the same thing, at 3 pi by 2 sine will be -1 but cos will be 0. So when you put sine -1 here, so this will be ai cap, and the other one will be, because here minus, so this will be aj cap. Okay, because cos is again 0. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. सो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इफ यू सी वी हैव गिवन दिस r t इज इक्वल टू a cos t I कैप प्लस a sin t j कैप. पहले हम ये पता करते हैं कि ये कर्व कौन सा है. तो अगर हम यहां से देखें, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. सो इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू a cos t and y is equal to a sin t. Okay, now you need to find out the equation from here. Just square and add them. So this will be x square plus y square is equal to a square कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा cos square t प्लस sin square t. तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, यहां से हमें पता चल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि जो ये पोजीशन वेक्टर है, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, सर्कल का. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को, जिसका ओरिजिन क्या है, जिसका ओरिजिन है 0,0 एंड रेडियस है a. ये कैसे पता चला, आपको पता है सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशन वेयर h कॉमा k is the center of the circle and r is the radius of the circle. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, सर्कल प्लॉट करें, ये सर्कल हमने प्लॉट किया जिसकी रेडियस a है, तो अगर हम 0 डिग्री पर देखें तो 0 डिग्री पे वेलोसिटी है j डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन है -i डायरेक्शन में. सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है j डायरेक्शन में, this is the velocity vector at this point, but acceleration is minus direction. This is the acceleration at this point. At this point, velocity vector is in negative x direction, but acceleration is negative y direction. We can check at 90 degree, negative x direction is the velocity, negative y direction is the acceleration. Similarly, at this point, the velocity vector is negative y direction, but acceleration vector is positive x direction. So this is acceleration, this is velocity, acceleration, velocity. See, at pi the acceleration is negative y, velocity is negative y direction, but acceleration is positive x direction. At 3 pi by 2 both are in positive directions. So velocity is positive x direction, but acceleration is positive y direction. So this is acceleration, this is velocity. So you can see this is basically a circular motion where this acceleration is always towards the center of the circle. So this kind of acceleration is known as centripetal acceleration, that we will discuss in classical mechanics. Now we will move to next example. इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है अ पार्टिकल हैज कोऑर्डिनेट xt इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड yt इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा टी. द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज, हमें बताना है इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी. सो हमें क्या गिवन है, गिवन है x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा टी. ओके, हमें यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन x एंड y. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2 ओमेगा टी का, और सिंपली वी कैन राइट cos 2 थीटा का. सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आएगा y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos 2 थीटा.
तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी, तो इट शुड बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, बट साइन ओमेगा टी हमें क्या वैल्यू दिया है, ये एक्स वैल्यू दिया है, तो साइन ओमेगा टी अगर एक्स वैल्यू देंगे तो y इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, a 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। नाउ यू ऑल मस्ट नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, this is the equation of parabola, kind of x square is directly proportional to y, so it is the parabola equation. Okay, so which option is correct? तो option D is correct. अब हम लेते हैं next example. Next example भी same है, a point particle is moving on the xy plane, trajectory given in polar coordinate by this equation. So trajectory of the particle is given in polar coordinate, so x square minus 2r sin theta plus pi by 4 minus 3 is equal to 0 by this equation. The trajectory of the particle is, हमें बताना है पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, सो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? लेट अस कंसीडर अ टू डायमेंशनल सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। हियर वी विल टेक वन पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, राइट। लेट से ये रेडियस है r। जब हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी y, and ये वाला डिस्टेंस होगा that will be x. Okay, let's say it is making angle theta with it. So from this triangle, let's say OAP. So from triangle POA, we can write down cos theta is equal to x upon r and sin theta is equal to y upon r. So यहां से हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे अगर इनको, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन ऐड। तो अगर हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी तरीके से हम अगर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन आर, सॉरी वाई अपॉन एक्स, तो यहां आ जाएगी वाई अपॉन आर। सो यहां से हम एक वैल्यू आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो x, y are the Cartesian coordinate and the polar coordinates are r, theta. So r, theta are the polar coordinates. So ये relation है between the Cartesian coordinates and the polar coordinates. So you need to remember this transformation. Okay, this is the relation between Cartesian coordinate and the polar coordinate system. Okay, fine. So now we will come back to problem. The problem says that we have a trajectory given by this equation r square minus 2r sine. So the trajectory is given in the problem. So given r square minus 2r sine theta plus pi by 4 minus 3 is equal to 0. Minus 3 is equal to 0. r square की जो वैल्यू है
वो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने यहाँ से देख लिया अभी। सो यहाँ हम उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। अब इस r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, पहले इसको ओपन कर लेंगे, दैट इज साइन a प्लस बी। सो इट विल बी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, आप सभी को पता है cos पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है और sin पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है। तो ये आ जाएगा 2/√2 हमने बाहर ले लिया, 1/√2 बाहर ले लिया, और जो ये r है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो r sin थीटा हो जाएगा और दूसरा बन जाएगा r cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जो ये r sin थीटा है ये y है और r cos थीटा है ये x है, हमने यहाँ पे अभी निकाला था। r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड r sin थीटा इज इक्वल टू y। जस्ट सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दिस विल बी, we'll keep it like this 1/2 into 1/√2, this will be x plus y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दिस विल बी √2x माइनस √2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो एनीवे आपको पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी नहीं बनाएंगे तब भी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एनीवे, अगर हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज अनदर फॉर्म ऑफ सर्कल्स इक्वेशन, वी विल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2x। सो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो √2/2 दैट इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे 1/√2 होल स्क्वायर माइनस 1/√2 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। ऐसे ही हम कर लेंगे y स्क्वायर के साथ में, y स्क्वायर माइनस √2y, अगेन द सेम थिंग विल हैपन, y के कोफिशिएंट को के हाफ को स्क्वायर कर देंगे और उसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर ऐड कर दिया माइनस 1/√2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1/√2 होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम y माइनस 1/√2 होल स्क्वायर and this will become 1/2, again this will become 1/2, so 1/2 minus के हैं, so that will become -1 and -3 is already there, so अगर इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें so हमें मिलेगा -4, so -4 is equal to 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x माइनस 1/√2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। So this is in this form x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So we can say that this equation shows a circle. So these are the standard form of the circle we have discussed. So this is a general form, this is the standard form of the circle. Okay. So इसका option C is correct. So it is the equation of circle. Okay. Coming to next problem. The next problem is the particle is moving on xy plane on trajectory given in polar coordinate by equations. Now we have discussed the polar coordinate. So हमें trajectory दिया हुआ है r sin
थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 5। हमें बताना है ये किसकी इक्वेशन है। सो अगेन हम सेम चीज करेंगे, आर इसको ओपन कर देंगे, सो दैट विल बी साइन ए प्लस बी। सो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, तो आप जाके एक बार रिविजिट कर लीजिए। साइन थीटा दैट विल बी कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 4 एंड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दिस, आई कैन राइट दिस एज अ 1 by root 2, this is again 1 by root 2, तो r by root 2 that will be sin theta plus cos theta is equal to 5. So अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, this will become r sin theta plus r cos theta is equal to 5 root 2. Now we know relation between polar coordinate and Cartesian coordinate, that r sin theta is equal to y and r cos theta is equal to x. So from here we can write x plus y is equal to 5 root 2. Okay, so this you can see this is the standard equation of straight line, right? You know y is equal to mx plus c is the equation of straight line. So you can write in this form, y is equal to minus x plus 5 root 2. So this is a standard equation of straight line. So हमें पता है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन A is correct. Okay, now we will take another problem and this problem is from CSIR NET June 2015. इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है हमें गिवन है a particle moves in 2 dimensions on ellipse and the equation of the ellipse is given x square plus 4y square is equal to 8. Okay, this is given to us. At a particular instant it is at a point x comma y. Okay, so x comma y is 2 comma 1. This is also given. किसी पर्टिकुलर टाइम में वो यहाँ पे है. The x component of velocity is, so vx, x component velocity is vx and that is represented by dx over dt. ये दिया हुआ है हमको, at this point is 6. Okay, हमें find out करना है what is the y component of the velocity. So we have given this and we have given dx over dt and we require dy, that is dy over dt, right? ये हमको चाहिए. तो क्या करना है, सिंपल है, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. सो दैट विल बिकम 2x dx over dt डिफरेंशिएटिंग with respect to time will differentiate plus 8y dy over dt is equal to 0. Okay, from here further we can do like this, 2x. Okay, now we need dy over dt, so we can write, so dy over dt is equal to, और 8y is equal to minus 2x dx over dt. इससे कट गया ये 4 times. So dy over dt that is vy is equal to आ जाएगा हमारे पास minus x upon 4y dx over dt. Okay, now यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें वैल्यूज गिवन है at x 2, 1. So at, so dy over dt when x is equal to 2, y is equal to 1 and dx over dt कितना 6. इन 3 वैल्यूज के लिए dy over dt निकाल लेंगे. सो माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 1 और dx over dt आ जाएगा 6. सो 4 टू जा 12 और माइनस 12 अपॉन 4 दैट इज माइनस 3. सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं. हम ये कहेंगे फाइंड आउट द पोजीशन, वी विल राइट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, फाइंड आउट
पोजीशन वेक्टर, राइट, फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर। सो हमें r फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो r क्या होगा अगर 2 डायमेंशनल है, सो दिस विल बी एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें एक्स टी और वाई टी फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर मोशन के। ये हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो गिवन प्रॉब्लम है उसके साथ में। सो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, नाउ हम इसको फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। हमने 8 से डिवाइड कर दिया, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर we can see a is equal to 2 root 2 and b is equal to root 2. Okay, you can see the major axis is x axis. You can see the a value is greater than b value, so ellipse will look like this, and we need to find out this vector. Okay, so the vector we need to find out. Now let's solve this problem. Okay, so a is given to us 2 root 2 and this value is given to us root 2. So major axis is x axis, minor axis is y axis. Okay, so यहाँ से आ जाएगा x is equal to a cos theta that is 2 root 2 cos theta and y is equal to आ जाएगा b sin theta that is root 2 sin theta. Okay, now इसको therefore the position vector आएगा that will be simply x component that is 2 root 2 cos theta times I cap plus the y component that is root 2 sin theta times j cap. आई होप सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर।